Hello, welcome to all in this new chapter 12. That is the algebraic expression. Okay, algebraic expression is very important chapters regarding to or related to other chapters. Okay, so everyone try to understand all the basic terms related to this chapter, and this is very helpful for your further classes, class 8th and 9th, and it is a very important chapters for your class 10th. So be ready for your board exams and be focused on these chapters, that is the algebraic expression. So before starting this video, let's try to their basic fundamental concept. And some students are new in my channel and watching first time in my video, so please subscribe this channel and like this video, and you can share this video in different social medias in Instagram, telegrams and so on. Okay, so let's start this video, and I hope this is a very helpful for everyone, those who want to really scoring more marks in the different subject and clear their concept. So now, what is the algebraic expression and what are their basic application in our daily life? Okay, generally we have doing different things at a different times. Suppose that we went we went to a market and purchase a different object and want to make a equation. Suppose that हम लोग टू ऑब्जेक्ट परचेस किए, फर्स्ट को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आफ्टर सम टाइम हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसको हम इक्वेशन फॉर्म करना चाहते हैं, उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट देयर वैल्यूज? सो बाय द हेल्पिंग ऑफ इक्वेशंस. सो इसी इक्वेशंस को हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और ट्राई करेंगे कि हाउ कैन वी फॉर्म इक्वेशन एंड हाउ कैन वी सॉल्व expression. Okay, so let's jump to the board and try to understand these chapters. Okay, so algebraic expression, okay, it is a different things related to this algebraic expression. So firstly we can try to understand what is constant. Okay, constant is a first topic related to this chapter. Okay, constant, okay, the numerical value which is always fixed at everywhere. Okay, the numerical value which is always fixed everywhere is known as constant. ओके, कांस्टेंट मीन्स क्या हो जाएगा, कोई सा भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ऑलवेज क्या हो, फिक्स हो. ओके, सपोज दैट वी कैन टेक एग्जांपल्स 2, 3, -4, ओके, -4, -6 एंड सो ऑन. ओके, मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? द वैल्यू विच इज ऑलवेज फिक्स्ड, जिसका वैल्यू कभी भी चेंजेस नहीं होता है. ठीक है, सपोज कोई बोल दिया कि व्हाट आर योर स्कोरिंग, आपका स्कोर क्या है. ठीक है, आप बोल दिए कि 4 है तो 4 ही होगा. ठीक है, सपोज कोई बोलता है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके क्लास का, तो 100 है, तो क्या होगा, 100 क्या हो, फिक्स हुआ. तो जिसका वैल्यू क्या रहता है, फिक्स रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं. ओके, देन प्रोसीड टू अवर सेकंड टॉपिक, दैट इज द वेरिएबल. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? सो नाउ, ओके, वेरिएबल इज अपोजिट टू कांस्टेंट. वेरिएबल, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? द न्यूमेरिकल वैल्यू, the value, okay, which is changed at place to place. ओके, place to place, जिसका वैल्यू क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं. ओके, एंड वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट्स. ओके, x, y, -2x, ओके, इसमें 3z एंड सो ऑन, जितने भी जो अल्फ़ाबेट्स है रिप्रेजेंट द वेरिएबल. बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वेरिएबल? सपोज दैट x, ओके, वी कैन कंसिडर दैट द रेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज x है. ठीक है, आपने x का वैल्यू, सपोज आप अपने माइंड में क्या करते हो, 100 रुपीज़ कंसिडर करते हो, तो सेम टाइम में कोई और पर्सन क्या हो सकता है, उसको 200 भी कंसिडर कर सकता है. सिमिलरली कोई और थर्ड पर्सन है वो 0 भी कंसिडर कर सकता है. बट जो कांस्टेंट रहेगा, मतलब कोई पर्सन आपको बोल दिया कि ये 2 है तो 2 ही होगा, बट ये जो क्या रहते हैं, चेंजेस होते रहता है. ठीक है, सो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and it is a very important terms related to our algebraic expression. Then proceed to understand what is the algebraic expression. Okay, algebraic
expression, algebraic expression is a combination of variable एंड कांस्टेंट। ठीक है, इसमें क्या रहेंगे, वेरिएबल भी रहेंगे एंड कांस्टेंट भी रहेंगे, एंड इट इज सेपरेटेड बाय, ओके, इसको आपको रिमेंबर रखना है, इट इज सेपरेटेड बाय प्लस, ओके, और माइनस साइन। ओके, प्लस और माइनस साइन से क्या रहता है, सेपरेट रहता है। ओके, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ओके, वी कैन टेक वन एग्जांपल, x माइनस वाई। ओके, x एंड y क्या हुआ, दोनों ही वेरिएबल है, और ये दोनों क्या हो गए, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, या फिर कांस्टेंट भी ले सकते हैं हम लोग। तो x प्लस टू भी क्या हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही हुआ। ओके, so it is very important, and definition of algebraic expression is the combination of variable and constant. Then proceed, ठीक है। ओके, अगेन सबको गुड मॉर्निंग टू ऑल इन दिस चैनल। ओके, इस वीडियो में सबको वेलकम है, और अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग डिफरेंट थिंग्स को। देन प्रोसीड करते हैं कि व्हाट इज टर्म्स। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म्स। ओके, an algebraic expression which contain the different part। ओके, जितने सारे भी इसके जो पार्ट रहेंगे उसकी हुई हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। ओके, हाउ द डिफरेंट पार्ट ऑफ एन algebraic expression ओके, फॉर एग्जाम्पल x प्लस टू। ओके, सपोज इसको हम लोग चलो माइनस ले लेते हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि प्लस ही प्लस बार बार ले रहे हैं, तो इसको माइनस भी ले लेते हैं। ओके, द डिफरेंट पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, x माइनस टू, तो ये x माइनस टू से क्या हुआ है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है फॉर्म हुआ है। ओके, इट इज़ ए फर्स्ट पार्ट एंड इट इज़ ए सेकेंड पार्ट। तो जितने सारे जो पार्ट रहते हैं, मतलब वो जितने सारी चीज़ों से क्या है, फॉर्म हुआ है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसके टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने पार्ट हुआ, 1 2। ओके, इट इज़ ए फर्स्ट पार्ट एंड इट इज़ ए सेकेंड पार्ट। आप कैसे जाने कि इसमें है, वो क्योंकि इट इज़ सेपरेटेड बाय माइनस और प्लस साइन से क्या होगा, वो सेपरेट रहेगा। अब सपोज 3z है, इसमें कितने पार्ट हैं, इसमें 1 ही पार्ट है। ओके, वाई बिकॉज इट इज़ नॉट सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो है, बट वो ऐसा नहीं है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर एनी डिफरेंट पार्ट आर सेपरेटेड बाय ओनली एंड ओनली प्लस और माइनस साइन। जब वो प्लस साइन से या माइनस साइन से हम उसको सेपरेट करेंगे, तभी क्या होता है, उसके वो टर्म्स होते हैं, तभी क्या होते हैं, उसके डिफरेंट वो पार्ट होते हैं। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर एवरीवन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म्स। द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो पार्ट रहेंगे उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसका टर्म्स बोलते हैं। ओके, देन प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कोफिशिएंट। ओके, कोफिशिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। कोफिशिएंट, ओके, सपोज वीडियो आप लोगों को फास्ट लग रहा होगा तो कमेंट्स करिए कि प्लीज़ अब थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए करके, जब तक आप लोगों का रिप्लाई नहीं आएगा उसके हिसाब से ही हम लोग क्या है फिर चेंजेस करते चलेंगे। ठीक है, लगता है कि ये थोड़ा फास्ट हो रहा है तो बोलिए कि सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए। जो भी है, जैसा आपको रिक्वायर्ड है, आपका नीड क्या है, आप कैसे टाइप का चाहते हो, फिर हम उसके हिसाब से फिर क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, फिक्स करेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ द कोफिशिएंट। द न्यूमेरिकल वैल्यू of n variable okay with their sign, okay, with their sign means plus or minus. Okay, what is the meaning of coefficient? 4x
द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, हियर x इज अ वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल है, एंड 4 इज कांस्टेंट। यहाँ पर हम इस टर्म्स का यूज नहीं करेंगे, है ना, दैट इज अ डिफरेंट। कांस्टेंट क्या होगा, दैट इज अ फिक्स, वो तो है, कांस्टेंट तो है ही है, बट हियर वी कैन से 4 इज अ फैक्टर्स और 4 इज अ कोफिशिएंट, ओके, इट इज अ कोफिशिएंट एंड विद देयर साइन। यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस है, तो +4 हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट करेंगे। सो +4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली वी कैन टेक अदर एग्जांपल 5y, देयर कोफिशिएंट c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 होगा। ओके, विद देयर साइन मीन्स व्हाट, प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस कंसीडर हम करते हैं। ओके, नोट कर लिए इतना। ओके, चलिए हम देन प्रोसीड करते हैं, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। ओके, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। सो सबको पता है क्या होता है, लाइक करना या फिर अनलाइक करना, दो ही चीज़ें होता है, ठीक है। फर्स्ट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइक। ओके, सो लाइक मीन्स दैट लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स an expression, okay, expression means what, algebraic expression have same number of terms, ठीक है, जो टर्म्स रहेंगे वो सेम रहेगा, सो दैट इज द लाइक टर्म्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स 2x - 1 एंड x - 2, 4x + 3। ओके, यहाँ पर और कुछ भी ले सकते हैं, ये ऐसे, इसमें फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म हुआ, फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म हुआ, फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म हुआ, फर्स्ट एंड सेकेंड। एन एक्सप्रेशन हैव द सेम नंबर ऑफ टर्म्स, जो उसके टर्म्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है, जितना है फर्स्ट में जितना है उतना सब में रहना चाहिए, तभी क्या होगा, वो लाइक टर्म्स होगा। क्या होगा, लाइक टर्म्स। देन हम लोगों का सेकेंड अनलाइक टर्म्स, ये सबको क्लियर हो ही गया होगा कि व्हाट इज अनलाइक टर्म्स। ओके, अनलाइक टर्म्स, सो अनलाइक टर्म्स, एन एक्सप्रेशन है डिफरेंट टर्म्स। ओके, जो टर्म्स रहेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे, क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। एन एक्सप्रेशन हैव different numbers of terms। ओके, एग्जाम्पल, ओके, आप लोग खुद से एग्जाम्पल देने की कोशिश करो। 2x हो गया सपोज, है ना, या फिर 4 -4 कर लेते हैं, -4 - 1। ओके, 3x + y + 3, तो इसमें 1 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 3 है। क्लियर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलाइक टर्म्स। यही सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस में रहेंगे, एक्सरसाइज में यही सब रहेगा, तो बेसिक से हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते प्रोसीड करते हैं। ओके, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज, ओके, एनीवन ट्राई टू टाइप्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। ओके, कितने टाइप्स के एक्सप्रेशन होते हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, फर्स्ट वन मोनोमियल। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोमियल, एन एक्सप्रेशन हैव ओनली 1 टर्म्स। अब यहाँ पर देखो, ये सब तो क्या हुआ, अनलाइक हुआ, ये हुआ लाइक हुआ, बट हम 1 टर्म्स है उसको क्या बोलेंगे, 2 टर्म्स है उसको एक फिक्स नेम होना चाहिए, 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, जितने भी डिफरेंट टर्म्स रहेंगे तो उसको आपको प्रिडिक्ट करना भी तो मस्ट है। तो मोनोमियल एन एक्सप्रेशन, ओके, एन एक्सप्रेशन हैव ओनली 1 टर्म्स। कितने टर्म्स रहेंगे इसमें, 1 टर्म्स ही होगा। ओके, एग्जाम्पल 4x, एग्जाम्पल के लिए नेगेटिव भी ले सकते हैं, ओके, या फिर सिंगल से हम लोग z भी ले सकते हैं। तो कितने टर्म्स रहेंगे, इसका कोफिशिएंट कितना है z का, ओके, ट्राई द कोफिशिएंट ऑफ z इज कितना, +1 और -1, ओके, यू नो। ओके, देन सेकेंड वन इज बायनोमियल।
So again it is clear by their name. Binomial means contain only two terms. N expression have only two terms. कितने टर्म्स रहेंगे? टू टर्म्स. ओके, एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा? 3y - 4, ओके, 10z - 3, ओके, कुछ भी कर सकते हैं. क्या होगा? ओनली टू टर्म्स होना चाहिए. 3. ओके, देन थर्ड वन इज ट्राइनोमियल. ओके, अगेन इट इज क्लियर बाय देयर नेम. ट्राइनोमियल्स हैव 3 टर्म्स. x + y - 2 कर सकते हैं, या x + y + z भी कर सकते हैं. ठीक है, आप लोग और डिफरेंट एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो. ओके, अब किसी में 4 टर्म्स रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओके, रिप्लाई में सपोज यहाँ पर तो 3 टर्म्स तक का हम लोग कर लिए कि इतने सारे जो टर्म्स हैं. अब उससे आगे भी तो हमको जानना है, तो 4 टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा? क्वाड्रिनोमियल. क्या हो जाएगा? क्वाड्रिनोमियल. ठीक है, फोर्थ वन इज क्वाड्रिनोमियल. ओके, x² प्लस, ओके, x + y + z -2. ओके, जितने सारे भी कितने टर्म्स रहेंगे? मैक्सिमम उसमें 4 टर्म्स रहेगा, तो 4 टर्म्स रहेगा, सो दैट इज द क्वाड्रिनोमियल. अब इसके आगे बात चलते हैं हम लोग. 5th टर्म है, 6th टर्म है, सारे चीज़ें हैं, तो क्या हो जाता है? दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिनोमियल. ओके, पॉलिनोमियल हम किसको बोलेंगे? इसको ध्यान से सुनिए आप लोग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एन एक्सप्रेशन विच हैव 1 और मोर देन 1 टर्म्स. ठीक है, 1 या 1 से क्या रहेगा? ज़्यादा टर्म्स रहेंगे, उसको हम सारे चीज़ों को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है, तो जो आपका मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल है, सारे चीज़ों को हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं. ठीक है, मतलब क्या हुआ? एन एक्सप्रेशन विच हैव 1 और मोर देन 1 टर्म्स, 1 से या ज़्यादा रहेगा. ओके, तो एन एक्सप्रेशन विच हैव 1 और मोर देन 1 टर्म्स. ठीक है, 1 टर्म्स. 1 या 1 से भी क्या हो सकता है? ये ज़्यादा होगा. सो दैट इज द पॉलिनोमियल. सारी चीज़ों को एक बार में आपको बोलना है कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज क्या? पॉलिनोमियल. क्लियर? ओके, देन इसको सबको आपको नोट करते भी चलना है, अंडरस्टैंड भी करते चलना है. ठीक है, और कुछ डाउट रहेगा तो ठीक है, क्या करना है? ओके, रिप्लाई में क्या करना है आपको? ओके, समझ गए होंगे क्या करना है. देन हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द फैक्टर्स. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेगा. फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं और हम किसको बोलते हैं. ठीक है, ओके, सो वी कैन डिफाइन फैक्टर्स इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट व्हाट इज डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एन टर्म्स. जो टर्म्स का एक देखो, कोई सभी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, उस टर्म्स में क्या क्या चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है. ओके, देखते हैं, चलिए. 4xy. ओके, 4xy ये फर्स्ट टर्म हुआ कि 2 टर्म्स हुआ? ये सिंगल, इट इज़ ए फर्स्ट टर्म, इसमें एक ही टर्म्स है. क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन. ये प्लस से और माइनस से सेपरेटेड नहीं है, सो इट हैव ओनली 1 टर्म्स. क्लियर? इसमें 1 ही टर्म्स हैं. अब जितने सारे जो हैं, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ. ये जो 4xy है, इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4x और ये y. तो 4x और y इसको हम एक साथ में 1 टाइम्स में क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं. 4 तो कोफिशिएंट होगा, ये तो क्लियर है कि x y का कोफिशिएंट क्या होगा? +4 होगा. अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या है, तो फैक्टर्स की यदि हम बात करेंगे तो 4xy मतलब जिससे वो क्या है? जिसका उसमें मल्टीप्लिकेशन है, जिसको हम लोग क्या किए हैं? उसमें मल्टीप्लाई किए हैं, वही तो क्या होगा? उसका फैक्टर्स होगा. तो 4xy इज द फैक्टर्स. क्लियर?
अब माइनस रहेगा तो आप क्या करोगे, माइनस के साथ कर लेना उसको, और प्लस के साथ रहेगा तो आप प्लस के साथ कर लेना, और कुछ नहीं रहेगा तो उसको आप जानते हो क्या करना है। ठीक है, ओके, चलिए समझते हैं। ओके, और ओके, अब हम लोग का एक और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा फैक्टर्स के बाद। चलिए समझते हैं, दैट इज़ द ट्री डायग्राम। ट्री सुने हो? यस। डायग्राम भी सुने हो? यस। तो ट्री डायग्राम आप लोगों के लिए एक न्यू चीज़ होगा, दैट इज़ द ट्री। ओके, ट्री डायग्राम क्या होता है देख लेते हैं। ट्री डायग्राम्स, कोई सा भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेशन से स्टार्ट करके आपको उसके फैक्टर्स तक का जो पर्टिकुलर डिवाइड करना, पर्टिकुलर पार्ट में उसको ब्रेक करना ही क्या होता है, ट्री डायग्राम होता है। ओके, हाउ, कैसे करेंगे? ओके, एन एक्सप्रेशन। ओके, कोई सा भी एक एक्सप्रेशन का एग्जांपल दीजिए मेरे को। सपोज ये है आप लोगों का 4x + y - 1 है, दिस इज ट्राइनोमियल। तो इतना चीज़ को हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? अब पता चल गया है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, फैक्टर्स भी है, कोफिशिएंट भी है, प्लस और माइनस से सेपरेट भी है, सो इट इज़ ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, यस और नो? यस, यस। ओके, देन इसको हम ब्रेक करते हैं टर्म्स में। ठीक है, सो वी कैन राइट हियर टर्म्स। इसके कितने सारे टर्म्स हैं? 4x हैं, यस, और y है, और क्या है, -1 है। तो कितने टर्म्स हुआ? 1 2 3। तो टोटल टर्म्स इज इक्वल टू 3 टर्म्स है। अब इसको आपको करना है फैक्टर्स। तो 4x यहाँ मैं लिख देता हूँ फैक्टर्स। ओके, फैक्टर्स 4x, और ये तो सिंगल y है तो y ही होगा, और ये भी क्या है, -1 है तो ये 1 ही होगा। तो जो हम डिफरेंट पार्ट के बाद भी उसके जो फैक्टर्स में डिवाइड किए, उसके टर्म्स में डिवाइड किए, तो ये जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसा जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो इट इज़ अ ट्री डायग्राम। ओके, इतना सारा चीज़ों को आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, तो आपको सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, ताकि जो वीडियो बना रहा है वो भी मोटिवेट हो और आपके लिए भी और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनता रहे। तो अभी तक यदि आप इसको लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, है ना, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको फर्स्ट क्या मिले, नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, okay, then proceed to our exercise 12.1. okay, everyone read all the questions from your book. Get the algebraic expression in the following cases using variable, constant and arithmetic operation. मतलब जितने सारे भी जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, और आपको क्या क्या गिवन है, वेरिएबल भी यूज़ करना है, कांस्टेंट भी यूज़ करना है, और उसको सेपरेट भी करना है। तो सेपरेट हम किससे करते हैं, प्लस साइन से, माइनस साइन से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। ठीक है, तो जब भी सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है तो आपको क्या करना रहता है, फ्रॉम से, मतलब जैसे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, तो आपको 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। ठीक है, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिए और आप खुद से भी ट्राई करिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, तो हम लोग क्या करेंगे, y - z। तो y और z क्या हुआ, वेरिएबल हुआ कि कांस्टेंट हुआ, ये वेरिएबल हुआ ना, और ये किससे सेपरेट है, माइनस से। सो y - z इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यस, ओके। सेकेंड, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, 1/2। तो हाफ मीन्स क्या होता है, 1/2 को हम लोग हाफ बोलते हैं, है ना। 1/3 मीन्स 1/3, 1 इसको हम हाफ ही बोलते हैं, 1/2 मीन्स 50%। सो 1/2 द सम ऑफ x एंड y, x है और ये y है, इन दोनों का 1/2 है। ठीक है, इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, x + y, और इसको सजा देंगे तो ये /2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। ओके, थर्ड वन, द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। ओके, द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या है, उसी को ही हम लोग कर देंगे। तो z इंटू जेड इज इक्वल टू z², ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। ओके, यहाँ पर कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 0 है, ध्यान रखिए, ये नहीं कि ये
नहीं है, ऐसा नहीं है। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर P एंड Q, तो एक कोई सा भी 2 नंबर क्या है, P है और Q है, इसका जो प्रोडक्ट का क्या है 1/4, मतलब 1/4 हो गया। ठीक है, इसको ऐसा भी 1/4 हुआ, तो PQ, ठीक है, PQ डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ओके, बहुत ही ईजी है ये। देन क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग सेल्फ करेंगे, नंबर 6 करते हैं। ठीक है, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर 3 M एंड N। ओके, देखिए क्या कर बोला जा रहा है इसमें 6(1) में। ओके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 5 एडेड द 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ M एंड N। M और N का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इसमें 3 टाइम्स भी है और इसमें क्या कर रहे हो 5 इज एडेड। तो देख लो, ध्यान से करिए आप लोग। अभी हम लोग जो वर्ड में है उसको हम लोग उसके लिए इक्वेशन बना रहे हैं, जो इक्वेशन गिवन रहेगा उसको आपको फिर वर्ड में भी करना है। तो थोड़ा अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करिए कि आप कौन सी टर्मिनोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, है ना, कहाँ पर आप एडिशन का, कहाँ पर सब्ट्रैक्शन का, आप कैसे करके उसको सॉल्व कर रहे हो। तो क्या हो जा रहा है, 5 इज एडेड द प्रोडक्ट एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ M एंड N। ऐसा करके इसको हम लोग क्या कर लिए, इसका इक्वेशन फॉर्म कर लिए। और ये भी तो एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स आपको अब समझ में आ गया है कि क्या होता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड में मूव करते हैं। बाकी क्वेश्चन को आप लोग सेल्फ करेंगे, है ना, बहुत ईजी है। नहीं बनेगा तो फिर हम लोग क्या करना है, हमको तो पता ही है, नेक्स्ट क्लास में उसको। ओके, चलिए ठीक है। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। अब ये ट्री और डायग्राम अभी हमने अच्छे से समझा है, तो ये बिल्कुल बनना तो श्योर है, नो प्रॉब्लम, बहुत ही ईजी है। चलिए 1-2 क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप खुद से भी कर सकते हो। फर्स्ट करते हैं x-3। ओके, x-3। अब इसमें हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स। इसके टर्म्स को फाइंड आउट करना है और इसके आपको फैक्टर्स को भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इसमें लिख देना है और बिल्कुल खुश रहना है। ठीक है, सो x-3 रिप्रेजेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टर्म्स में इसको हम ब्रेक करते हैं। तो ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ टर्म्स। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखना है। टर्म्स क्या है, यहाँ पर x है और यहाँ पर कितना है, -3 है। ओके, अब इसके फैक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स क्या है, 1 × x है ना, 1 × 2 करोगे तो कितना मिलेगा, 2 ही तो मिलता है। सिमिलरली वी कैन राइट हियर 1 × t मीन्स इसका फैक्टर्स 1 हुआ और इसका फैक्टर्स भी 1 है, मतलब वहाँ जनरली लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन प्रोसीड टू और फर्दर क्वेश्चन। -4x + 5y। ओके, अगेन ये इट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं यहाँ पर टर्म्स लिख दूँ। अब इसके क्या क्या टर्म्स हैं, -4x है, ओके, और 5y है, प्लस में है तो प्लस कर लो, नो प्रॉब्लम। अब इसके फैक्टर्स को हम कर देंगे तो 4 हुआ और x हुआ, सिमिलरली 5 होगा और ये y होगा। सो इट इज़ देयर फैक्टर्स। ओके, बहुत ही ईजी है। ओके, C एंड D आपके लिए है। ठीक है, आपको भी तो ट्राई करना है। ओके, E की बात करें तो E में भी नो प्रॉब्लम है। ओके, चलिए हम लोग F को कर लेते हैं। ठीक है, तो F में क्या करेंगे, व्हाट इज गिवन दैट, F 1.2ab -2.4b + 3.6a। ओके, रिप्लाई में इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और नॉट। ऐसा तो कोई नहीं है जो बोल रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं है, इट इज़ आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सो फर्स्ट वी कैन राइट देयर टर्म्स। तो टर्म्स की यदि हम बात करेंगे तो कितने टर्म्स हैं इसमें, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, बोलते हैं ना कि आपका टर्म्स ठीक नहीं है, ढंग से बात करना सीखो। ठीक वैसे ही मैथ्स के लिए भी है, अच्छे से लिखोगे विथ साइन तो आपका आंसर भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 3.6 और ये a, यहाँ भी प्लस लगा लेते हैं। ओके, देन देयर फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है 1.2, देन a है, यहाँ पर b है। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2.4 है और ये b हो गया। ओके, देन हियर 3.6 एंड हियर a। सो सिमिलरली वी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। g में क्या करेंगे, 3/4x है, 1/4 है, तो हम उसको सेम कर लेंगे। ओके, और देन प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और हम लोगों के लिए बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा, क्योंकि वीडियो भी हम लोग को लॉन्ग हो जाएगा फिर। ओके, समझ गए आपको क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए और वेट करिए। एंड